Hello students, so it's standard 7th math subject. We have understood integer, its functions, addition and subtraction in previous video. Now we are going to the exercise 1.3. I have given you homework on exercise 1.3 that you have brilliantly solved the first 1.1. Exercise 1.1. You have solved fill in the blanks. Then compare the following integers using smaller than, greater than and equal to. Then the third, arrange the following integers in ascending order. You have solved it properly, and I have said on WhatsApp that you have understood the rules of addition and subtraction of integer. Now it's time to do problem number 4. Simplify the following. Simplify the following. Here we consider first minus 15 minus 40. What will be the solution of this sentence? We firstly write the problem minus 15 minus 40. Then give this sign before the steps. Minus 15, write as it is. Then we have known minus bracket minus 40. So here the relation between minus and bracket is minus plus. Then we write 40. Next step, 40 is larger than minus 15. So we do subtraction here because 15 has sign negative. Negative 15 plus positive 40. So 40 minus 15. What will be? 40 minus 15, 25. 25 is the correct answer. Then we will take problem number D. Consider it 57 plus minus 11 minus 10 minus 10 plus 7. It is our question. You can see in this problem there are 3 minus signs. Firstly write the problem as it is 57 plus minus 11, then minus 10 plus 7. इसमें क्या करेंगे? 57 ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, प्लस माइनस here minus plus 10, then plus
7. Now you can make pairs of two terms. 57 minus 11. 7 minus 1, 6. And 5 minus 1, 4. 46. Then you can write like that. Now do addition between 2. 46 plus 10 plus 7, 17. Then 46 plus 17 is equal to what? 6 plus 7, 13. 1 carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 4, 6. 63 is correct answer. I think you have understood the solution. It is based on addition and subtraction rules of integer. So I think you have understood. Simplify the following. The method is so easy. Like this, you have to solve remaining problem of question number 4. Then we see question number 5. What is the question number 5? It is verify a minus b is equal to a plus b. हमें करना क्या है? ये माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें दो साइड है, ये LHS और ये RHS। LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड, RHS मैंने राइट हैंड साइड। तो ये दोनों साइड जो है ये हमें वेरीफाई करके देना है इक्वल है या इक्वल नहीं है, सेम है या सेम नहीं है। तो इसके लिए हमें वैल्यू दी है a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -5। प्रॉब्लम फर्स्ट a में दिया हुआ है, a की वैल्यू 3 दी है, b की वैल्यू -5 दी है। करेंगे कैसे? तो वेरीफाई करने के नियम है। सबसे पहले सॉल्यूशन में LHS लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम ये लिखेंगे a माइनस ब्रैकेट माइनस b। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो a की वैल्यू दी है 3 माइनस माइनस b की वैल्यू है -5 b इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है और ये यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस था। तो इसीलिए हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे ताकि जो साइंस है वो प्रॉपर्ली हमें समझ आ जाए, ताकि सॉल्यूशन करते वक्त नेक्स्ट स्टेप गलत ना हो। तो 3 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, हम लिखेंगे यहाँ पे +5। अब देखिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स में देखा है कि यदि गिवन नंबर्स में जो बड़ी नंबर्स होती है उसका साइन माइनस में रहा तो माइनस करते हैं और माइनस में ही आंसर देते हैं। तो सबसे पहले माइनस में आंसर देना है, इसलिए माइनस लिख लो। अब माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
तो क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो ये जो -2 है ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें देखना है हमें कि दोनों साइड इक्वल आती है या नहीं। इसके बाद है सेकेंड साइड। सेकेंड साइड को आर बोलेंगे और आगे प्रश्न में राइट हैंड साइड। इसमें लिखेंगे a प्लस b। LHS का आंसर है -2। a प्लस b में वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू 3 प्लस और b की वैल्यू -5। यदि इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर भी -2 आता है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। ऐसा भी लिख सकते हैं A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B। इस तरह से ये जो है वेरीफाई हो जाता है। तो वेरिफिकेशन में so friends, I think you have understood verification of numbers. Now the next question is subtract the sum of -110 and 235 from the sum of 103 and -117. Here there are two groups of numbers, the first group and the second group. हमें यहाँ दोनों ग्रुप का पहले सम करना है। तो हमने दोनों ग्रुप को यहाँ लिखा है सॉल्यूशन में। पहले ये जो फर्स्ट ग्रुप दिया इनका सम कर लिए। 235 ये नंबर जो है 110 से बड़ा है, -110 ये स्मॉलर नंबर है और उसका साइन माइनस में है। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 235 माइनस 110 इज इक्वल टू 125। और फिर दूसरा देखिए, उसमें जो दूसरा ग्रुप दिया है नंबर्स का उसमें भी पहले सम करने बोला है। तो 103 प्लस -170 इस तरह से करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो करना माइनस है और लिखना भी माइनस है। यहाँ पर -117 की एब्सोल्यूट वैल्यू +117 होती है। तो +117 में से +103 पहले माइनस कर लेंगे। तो 17 - 3 14 1 - 1 0। तो -14 ये इन दो नंबर्स का सम आ गया। उसके बाद बोला है सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन फ्रॉम यहाँ लिखा है यानी सेकेंड नंबर ऑफ ग्रुप में से फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप का सम माइनस करना है। इसलिए इस तरह से अरेंज करेंगे -14 - 125। What will be the answer? Here the signs are both signs are common, minus minus. So in addition, minus plus minus is equal to minus. लिखेंगे भी माइनस और लिखेंगे माइनस, लेकिन हमें करना यहाँ प्लस। तो 125 प्लस 14 ये जब एडिशन करते हैं 4 + 5 9 1 + 2 3 और 1 + 1 + 0 1। तो -139 ये
रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम इससे बड़ी नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। उसमें दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है, इसमें आप लोगों को हम जो भी रूल्स पीछे पढ़े उनके आधार पे खुद से ही सॉल्व करना है। जैसे पहला दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है पॉजिटिव इंटीजर का, ये नेगेटिव होता है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। दूसरा दिया है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है, दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक उनमें से नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, बढ़ाने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। मतलब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, फॉल्स लिखेंगे। जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये साफ साफ गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है जीरो इज न तो नेगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है। The sum of four different integers can never be zero। यहाँ पर दिया है the sum of four different integers can never be zero। ये स्टेटमेंट गलत, जीरो नहीं हो सकता, ऐसा दिया है, जीरो हो सकता है। -1 is the greatest negative integer, ये राइट है। हमने नंबर लाइन पर लिखा था कि -1 जो है ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, इसीलिए मैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू साइक्लिस्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ माउंटेन। सपोज दिस इज अ माउंटेन और ये एक पॉइंट लिया हमने। इस पॉइंट को यदि लेते हैं तो दोनों दो व्यक्ति है, दो साइक्लिस्ट है, दोनों एक ही जगह से साइक्लिंग की शुरुआत करते हैं। इसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे समझने के लिए। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे दो साइक्लिस्ट हैं, कितने? दो साइक्लिस्ट है और ये दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट से साइक्लिंग की स्टार्ट करते हैं। तो ऑन ट्रेवल्स 1200 meter downward the mountain in 20 minutes and the other travels one travel 1200 meter down। डाउन बोला और अप बोला, तो डाउन में ये जो जब ग्रेविटी होती है उसके आधार पर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हमें अरेंज करना होता है। यदि वो ग्रेविटी की दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव है, और ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसे नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ 1200 मीटर डाउनवर्ड दिया है और यहाँ 350 मीटर अपवर्ड दिया हुआ है। तो दोनों नंबर्स को यदि हम देखते हैं मीटर 1200 मीटर डाउनवर्ड द माउंटेन इन 20 मिनट्स एंड other travel 350 meter upward the mountain in the same time। How far are they from each other after 20 minutes? ये जो टाइम दिया हुआ है यहाँ 20 मिनट का टाइम है, ये देख लीजिए। टाइम 20 मिनट्स डाउनवर्ड और ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है और अपवर्ड है। तो इसमें क्या करना है, जो डाउनवर्ड है ये पॉजिटिव है, तो ये 1200 मीटर, हाँ ये 1200 मीटर डाउनवर्ड लिखेंगे और इधर अपवर्ड लिखेंगे तो नंबर लाइन समझ आएगी। डाउनवर्ड में 1200 मीटर लिखा है
अपवर्ड में 350 मीटर लिखा है। अब क्या करना है, ये जो अपवर्ड है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस में लिखेंगे। ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से इसे हम माइनस में शो करेंगे। इसके बाद अगर सॉल्यूशन लिखना है हमें, ये कंडीशन हमने एक फिगर के द्वारा शो कर ली है। इसके बाद की कंडीशन आती है कि हाउ फार दे आर दे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। तो यहाँ पर हमें दोनों जो नंबर्स मिली है उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर 1200 माइनस 350 मीटर, तो आंसर आता है 1200 माइनस प्लस 350 मीटर। अब इन दोनों नंबर्स का हम एडिशन कर लेंगे, तो 1200 प्लस 300 1550, तो ये इजीली हमें फाइंड हो गया 1550 मीटर। इस तरह से हमें बाकी जो प्रॉब्लम है 9, 10, 11 नोटबुक में सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा, ये यहाँ पर 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। और इसके पहले जो हमने 4th, 5th, 6th प्रॉब्लम पढ़े उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं। उस टाइप से आपको बाकी प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। तो आज का होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इनको भी ज्यादा लंबी स्टेप में ना सॉल्व करते हुए 3-4 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।